Good afternoon, students. Today we are going to start our chapter number 5 of grammar. The chapter number 5 is about noun numbers. Noun numbers. I think you all know what is noun. Noun is a naming word. It is a name of a person, place or thing. Noun क्या होता है? Noun किसी person का नाम, किसी जगह का नाम या किसी चीज का नाम, तो उसे हम क्या कहते हैं? नाउन. जैसे कि अब हम पढ़ने वाले हैं नाउन नंबर्स. नाउन नंबर्स मीन्स व्हाट? नाउन के नंबर्स कितने हैं. नंबर्स कितने हैं? लाइक ऐसे नहीं 1 2 3 4. जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ आई से बॉय, BO by boy. Okay. If I'm talking about only one boy, I will say boy. If I'm talking about more than 2 or more than 1, so I will say boys. तो हम क्या करते हैं? नंबर्स मतलब हम उस नाउन की हम बताते हैं कि कितने हैं वो, एक है या एक से ज्यादा, एक या अनेक हैं. ओके. So the noun numbers are divided into two categories, that is singular and plural. Singular means single, means one, and plural means more than one. So there are different ways to change from singular to plural. So we are going to learn about that. So singular and plural. So first one is means in some cases you directly add s. Okay, like animal will become animals. Okay, bale will become bales, pen will become pens, bag will become bags. Means in some cases you directly add s to make it plural. आप डायरेक्ट क्या करते हो? s ऐड कर देते हो, जिससे वो क्या बन जाता है? प्लूरल बन जाता है. ओके. तो अब कुछ ऐसे केसेस होते हैं यहाँ पे हमको कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं उसे सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए. तो देखिए, फर्स्ट वन, सपोज इफ एनी लेटर मीन्स अगर कोई वर्ड है जिसके एंड में क्या आ रहा है? ओ आ रहा है, एस आ रहा है, डबल एस आ रहा है, एक्स आ रहा है, CH आ रहा है या SH आ रहा है. अगर कोई ऐसा वर्ड है जिसके लास्ट में क्या आ रहा है? O, S, double S, X, CH and SH. So what you will do in that case? You will, okay, we can learn by taking some examples like mango, MANGO, mango. Mango is a singular word. Mango means a single mango. Okay, एक मैंगो के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम एक से ज्यादा मैंगोज के बारे में बात करेंगे तो हम क्या बोलेंगे? सी द लास्ट लेटर इज ओ. अगर लास्ट लेटर ओ है तो हम क्या करते हैं? मतलब अगर कोई भी इनमें से लास्ट लेटर आता है तो हम क्या लगा देते हैं? ES. क्या लगा देते हैं? ES. तो मैंगो विल चेंज इनटू MANGOES. Means after this letter you will add ES. Mango will become mangoes. अगर किसी वर्ड के लास्ट में O आ रहा है, S आ रहा है, डबल S, X, CH, SH, तो आप उसके लास्ट में प्लूरल बनाने के लिए S नहीं लिखेंगे. You will write ES. Okay, तो वो ES बन जाएगा. तो मैंगो का मैंगोज हो जाएगा. We can take one more example of S. BUS, bus. See, अगर एक बस के बारे में बात करें, if you're talking about only one bus, then write bus, and more than one bus, buses. देखो लास्ट में S आ रहा है तो क्या लगा देंगे? ES. buses. Then after that SH or double S. We can take one example of double S. CLASS. CLASS is class. देखो लास्ट में डबल S आ रहा है तो हम क्या कर देंगे? classes. CLASSES, classes. Okay. Next is अगर आपको समझ में आया ना, किसी वर्ड के लास्ट में X, CH, SH आएगा तो भी आप क्या लगा दोगे? ES. Like X, BOX, box. BOX क्या है? बॉक्स. तो बॉक्स का क्या हो जाएगा?
बॉक्सेस, मतलब x के साथ आप क्या लगा दो कि es, क्योंकि x आ रहा है. ch like lunch, lunch will become lunches, bench will become benches. sh like brush, brush will become brushes, brush, brush, and you will add es, so it will become brushes. Okay, I hope this one is clear, right? This is the first case, how you make singular to plural. अगर आपको सिंगुलर से प्लूरल बनाना है और किसी वर्ड के लास्ट में o, s, double s, x, ch और sh आता है, तो आप उसके लास्ट में es ऐड कर दोगे. Okay, this is clear. So now second case. Second case is suppose किसी वर्ड के लास्ट में y और y आ रहा है. Suppose in some cases the last word is y. Okay, तो आप उसमें क्या करोगे, y को आप रिमूव कर दोगे और क्या लगा दोगे, i e s. मतलब es तो हम लगा ही रहे थे पहले भी, लेकिन इन प्लेस ऑफ y you will write i. इसमें भी दो केसेस होते हैं. फर्स्ट वन इज सपोज आई एम राइटिंग आर्मी, ARMY, आर्मी. सी द लास्ट लेटर इज y, लास्ट लेटर क्या है, y. तो हम इस y को हटा देंगे, क्या लिखेंगे, ARM, y हट जाएगा, क्या आ जाएगा, IES, आर्मीज. और वी कैन टेक वन मोर एग्जांपल, सिटी, CITY, city. Okay, then you will remove this y and you will write cities, CITIES. y की जगह पे i आ जाएगा और es. city will become cities. तो ये मैंने बताया कि अगर आपको सिंगुलर से प्लूरल बनाना है, अगर आपको एक से ज्यादा बताने हैं, तो आप अगर लास्ट में y आ रहा है किसी वर्ड के, तो y को हटा के IES लगा दोगे. आर्मी विल बिकम आर्मी, सिटी विल बिकम सिटीज. ओके, लाइक लेडी विल बिकम लेडीज. ओके, डेली विल बिकम डेलीज, स्टोरी विल बिकम स्टोरीज. नाउ वन मोर एग्जाम्पल. अब देखिए, जैसे मैंने आपको सबसे पहले एक एग्जाम्पल दिया था बॉय, BOY बॉय, BOY बॉय, BOY बॉय का एग्जाम्पल दिया था मैंने. अब एक बात बताइए, BOY बॉय है, तो ये जो बॉय है, मैं इसमें इसको बॉयज क्यों लिख रही हूं, क्यों मैं इसका y रिमूव नहीं कर रही हूं और IES नहीं लगा रही. कभी स्पेलिंग बॉयज की ऐसी देखी, BOIES, नो ना. तो ऐसा कब होता है बेटा, जब अगर आपकी जो यू नो व्हाट इज वोवेल, वोवेल्स क्या होते हैं, वोवेल्स अगर आपको दिख जाते हैं, जैसे ये वोवेल है, अगर y के पहले वोवेल आता है तो हम डायरेक्ट s लगा देते हैं. y के पहले अगर कोई वोवेल नहीं आता तो हम IES लगाते हैं. इसका एक और एग्जांपल देखते हैं हम, लाइक वे और की, KEY की. ओके, KEY की. तो की, सी y के पहले क्या है, ई आ रहा है, ई वोवेल है, तो ये क्या हो जाएगा, कीज, KEYS कीज. मीन्स दिस इज द सेकेंड केस. अगर वोवेल दिया होगा y के पहले तो हम डायरेक्ट s लगा देंगे, और वोवेल नहीं दिया होगा तो हम IES लगाएंगे. आई थिंक दिस पार्ट इज ऑल्सो क्लियर. नेक्स्ट इज थर्ड वन. F and FE. अगर किसी वर्ड के लास्ट में F और FE आ रहे हैं, तो आप उस F और FE को हटा के VES लिख दोगे. ठीक है, जैसे कि इफ यू राइटिंग लीफ, LEAF, लीफ. सी द लास्ट लेटर इज F, so you will remove this F and you will write LEA and F will change into VES, leaves. Okay, suppose knife, KNIFE, knife. See, last में क्या आ रहा है, FE. So you will remove this FE and you will write KNIVES, knives. Means remove this FE and write VES, knives. Okay.
or we can take one more example, life, L-I-F-E, life. So F-E is there, so remove this F-I, F-E and write L-I. F-E की जगह पे क्या आ जाएगा, V-E-S, life. Okay. Now the next one is the fourth one. The fourth one is मीन्स आपने कुछ ऐसे वर्ड्स देखे होंगे जिसमें आप उसका बिल्कुल स्पेलिंग ही चेंज हो जाती है, उसमें ना एस लगेगा ना ई एस लगेगा ना आई एस लगेगा. वी कैन टेक वन एग्जांपल लाइक चाइल्ड, CHILD, चाइल्ड. चाइल्ड का क्या हो जाएगा, CHILD, चाइल्ड. चाइल्ड लिखते हैं क्या हम कभी, चाइल्ड्स नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे चिल्ड्रन. वन इज चाइल्ड एंड मोर देन वन इज चिल्ड्रन. CHILDREN, children. Okay, like ox. Ox का क्या होता है, oxes नहीं होता, oxen, OXEN, oxen. Okay, means in some cases we change the word. Okay, means spellings are changed. Child का children, ox का oxen, basis का basis, like लार्वा का लार्वे, रेडियस का रेडियाई. एक होता है रेडियस, RADIOUS, रेडियस इज रेडियाई. मीन्स in some cases you have to change the spellings. Okay, अब दूसरा केस आता है like कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो दो वर्ड से मिलके बने होते हैं, लाइक ओके दिस केस इज क्लियर. सो आई एम टॉकिंग अबाउट फिफ्थ केस. द फिफ्थ केस इज the fifth case is means suppose I have written grown up. Grown up, ये जो वर्ड है ये दो वर्ड से मिलके बना है grown up. तो इसका प्लूरल कैसे बनाएंगे, एक को बोल रहे हो grown up, ठीक है, लेकिन एक से ज्यादा को बोलोगे तो क्या बोलोगे, grown ups. तो आप इसके लास्ट में क्या लगा दोगे, s, grown ups. Okay, grown up will change into grown ups. Like maid servant, maid servant. Okay, maid servant का क्या हो जाएगा, यहां ऐसे नहीं लगाएंगे हम, we will write s after this servant. So the word will be maid servants, maid servants. Okay, like step-son, step-son, S-T-E-P, step, S-O-N, son. Step-son will change into step-sons. एक step-son होगा तो step-son, एक से ज्यादा होंगे तो step-sons. Okay. Next one is, अच्छा कुछ ऐसे वर्ड्स भी होते हैं लाइक in sixth case, like father-in-law, father-in-law. So it will change into fathers-in-law. फादर इन लॉ, अभी हमने क्या किया था, हमने इसके लास्ट में एस लगा रहे थे, लेकिन जब ये फादर मदर ऐसे वर्ड्स आएंगे तो आप कहाँ लगाओगे, उसमें भी हमने सन में लगाया था, सन्स किया था ना, तो जब भी फादर मदर सन डॉटर ये रिश्ते नाते जो भी है उनके साथ लगाओगे. फादर इन लॉ विल चेंज इनटू फादर्स इन लॉ. नेक्स्ट वन इज लाइक पासर बाय, वो जो पास से गुजर के जाता है उसे हम बोलते हैं पासर बाय, पासर
by. This passerby will change into passers by. P-A-S-S-E-R-S. Passers, then by. This is the sixth case. Okay, like, and in some cases, seventh one, कुछ वर्ड्स वैसे के वैसे रहते हैं, चाहे वो एक हो या एक से ज्यादा. जैसे कि डियर, D-E-E-R, डियर. डियर विल चेंज इनटू डियर ओनली. ओके, कभी एक डियर होगा तो भी डियर बोलेंगे और एक से ज्यादा होगा तो भी डियर ही बोलेंगे. पोइट्री, पोइट्री मतलब कविता. अगर पोइट्री एक है तो भी, क्योंकि आप उसे गिन नहीं सकते ना. ओके, पोइट्री विल बी पोइट्री ओनली. पीपल विल बी पीपल ओनली. ओके, फर्नीचर विल बी फर्नीचर ओनली. फिश इज फिश ओनली. शीप विल बी शीप ओनली. ओके, नेक्स्ट, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स के जो नाम होते हैं उनमें एस लगा ही होता है. वो प्लूरल नहीं है बट उनमें एस लगा ही होता है. जैसे कि पॉलिटिक्स, मैथमेटिक्स. मैथमेटिक नहीं होता, मैथमेटिक्स होता है. ओके, फिजिक नहीं होता, फिजिक्स होता है. तो सब्जेक्ट्स के नाम के आगे भी एस लगा होता है. एंड लाइक ट्राउजर्स. सी, ट्राउजर क्यों नहीं होता, ट्राउजर्स क्यों होता है? बिकॉज इट हैज टू पेयर्स. ओके, दो पेयर होते हैं ना. गॉगल्स होते हैं, गॉगल नहीं होते, गॉगल्स. व्हाई? बिकॉज इट हैज टू पेयर्स. ओके, so these words are also written in plural form only. So this chapter is over. You will get your exercise. I hope this chapter is clear. Okay, this is about noun, numbers, and today we have studied how to change singular form into plural form. First method, we have seen that in some words the last letter is O, S, double S, CH, SH. तो उसके साथ हम क्या लगा देते हैं? ES लगा देते हैं. Y वाले केस में हम क्या करते हैं? अगर उसके पहले कोई वॉवल नहीं होता तो हम Y को हटाकर IES लगा देते हैं. लेकिन अगर वॉवल होता है तो हम डायरेक्ट S लगा देते हैं. इन केस ऑफ F एंड FE, F और FE को हम रिमूव करते हैं. इन प्लेस ऑफ इट वी राइट VES. ओके, एंड द नेक्स्ट केस वी हैव सीन दैट कुछ वर्ड्स की स्पेलिंग चेंज हो जाती है. लाइक चाइल्ड विल बिकम चिल्ड्रन, ऑक्स विल बिकम ऑक्सन. एंड इन सम केसेस लाइक मेड सर्वेंट विल बिकम मेड सर्वेंट्स, फादर इन लॉ विल बिकम फादर्स इन लॉ. ओके, और कुछ वर्ड्स वैसे के वैसे रहते हैं. लाइक शीप का शीप, डियर का डियर. ओके, एंड इन केस ऑफ सब्जेक्ट्स उसके आगे एस लगा ही होता है. ओके, आई होप दिस चैप्टर इज क्लियर. थैंक यू.